عرفان مشکل جملے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں نے گزارش کی کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے خود غرض طاقت کا نام ممتا. آپ لباد والوں ایک بات یاد رکھنا، ماں اور ہے، ممتا اور ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں کیا آواز. ماں کیا ہے؟ یہ سر سے پاؤں تک ایک عزت دار مستور وجود کا نام ہے ماں. بڑی توجہ. ممتا کیا ہے؟ اس ماں کے اندر اولاد سے محبت کا ایک جذبہ ہے، اس جذبے کا نام ہے ممتا. تم سامعین یہ بات یاد رکھیے گا، ماں کی قربانی جائز ہے، ممتا کی قربانی مشکل. ماں کی قربانی کیا ہے؟ کسی اسلامی تحریک کے لیے بیٹا نثار کر دے، بیٹا قربان کر دے، بیٹے کی شہادت برداشت کر دے. ماں کی قربانی کیا ہے؟ اسلامی تحریک کے لیے بیٹا نثار کر دینا، بیٹا قربان کر دینا، بیٹے کی شہادت برداشت کر دینا. بابا جی یہ ہے ماں کی قربانی. یہ کائنات کا مشکل ترین کام ہے. ممتا کی قربانی اس سے بھی مشکل ہے. ممتا کی قربانی کیا ہے؟ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہہ دے. اگر مجمع جاگے گا تو پھر بات کرو اٹھائے گا. کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہہ دے. بڑی توجہ. یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے. کہتا ہے یہ صرف دو وجوہات کے بنا پہ ہوتا ہے. یا تو خدا نہ خواستہ گود آباد نہ ہو، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد تھک کے عورت کسی بھائی کے بچے کو، کسی بہن کے بیٹے کو، کسی ہمسائے کے بیٹے کو اپنا بچہ کہتے ہیں. بھائی فان یا تو گود آباد نہ ہو، یا پھر گود آباد ہو اولاد اچھی نہ ہو، اولاد لائق نہ ہو. کہتے ہیں دعا فرمائیے گا، اولاد لائق نہ ہو، اولاد حسین نہ ہو، اولاد خوبصورت نہ ہو، اولاد بے عیب نہ ہو. تب عورت کسی کے اچھے بچے کو، کسی کے لائق بچے کو، کسی کے حسین بچے کو، کسی کے خوبصورت بچے کو، کسی کے بے عیب بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے. شیعہ ہو یا سنی، میں دونوں گھروں کا نوکر ہوں. قرآن سر پہ رکھ کے بتانا کیا ہوگا عباس جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا. کیا بات ہے یار. بال مخمائی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو شرافت رکھیے. جس بندے کو بات رکھیے، جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا. شاباش، زندہ باد. کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ. پاک مخدومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو شرافت. جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، ہائے ہائے، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، وہ کہتی رہی عباس. اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے. پاس لفظ ہے وہی آپ نے قبول کرنے. اتنے حسین بچوں کی ماں. تو کیا دعا فرمائیے گا؟ اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے. اتنے رئیس بچوں کی ماں جس کے بچے عید والے دن محمد کی شانوں پہ چڑھتے ہیں. اور بابا جی جب وہ محمد کی شانوں پہ چڑھ جاتے ہوں اور زمانہ دے کے کہتا واہ واہ کیا سواری ہے، محمد محسوس کر کے فرماتے شرم نہیں آتی، سوار نظر نہیں آ رہے. شاباش، زندہ باد. آپ آواز کیا کہنے آتے ہیں؟ محمد محسوس کر کے فرماتے شرم نہیں آتی، سوار نظر نہیں آ رہے. اتنے رئیس بچوں کی ماں جس کے بچے عید والے دن محمد کی شانوں پہ چڑھتے ہوں. اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہو، وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا. آئے آئے. میں بھائی فان بات بیٹھک میں نہیں کر رہا، ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا، ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں محمد دنیا میں آئے آتے ہی اللہ نے سلام کیا. علی دنیا میں آئے آتے ہی محمد نے سلام کیا. شہزادی دنیا میں آئی آتے ہی علی نے سلام کیا. حسن دنیا میں آئے آتے شہزادی نے سلام کیا. حسین دنیا میں آئے آتے ہی حسن نے سلام کیا. بھائی عرفان میں نہیں مانتا کہ بندہ غازی کا نوکر ہو اس جملے میں نہ بولے. یہ سب آتے رہے اور سلام آتے رہے. عباس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہہ رہے. اس ماتمی کا ہاتھ نیچے یار مجھے دکھاؤ نا. سبحان اللہ. پوری طاقت کے ساتھ آخری صف تک کے لیے جرأت کے ساتھ ہر حلالی ہر ماتمی مل کے حیدری
क्या कहने आपके, आप जिंदा हो सलाम। अब्बास अभी दुनिया में आया नहीं और बतूल सलाम कह रहे भाई। मिंबर की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज 9 दिनों में मेरा कोई लफ्ज आया नहीं हुआ। आपकी समात पर मुझे इतना एतमाद, मगर इतना भरोसा है। अब देखता हूँ कि आप इस जुमले में कितनी दाद देते हैं और कितनी दुआ करते हैं। वो अस्सलाम जिसे सलाम करता था वो इसे सलाम कह रहे हैं। हाय हाय हाय, बात जरा मुश्किल थी, हर बंदे ने नहीं बोलना था। वो अस्सलाम जिसे सलाम करता था, वो अस्सलाम जिसे सलाम कहता था वो इसे सलाम कह रहे हैं। चला ज़ाकिरीन को फहरिस्त बना हुसैन के नौकरों की और फिर किताबें सामने रख के बात कर। अल्लाह की इस कायनात में अकेला रईस है हुसैन जिसका झूला झुलाने बगैर किसी काम के आया है जिब्राइल। सिर्फ हुसैन का, बोलो, सिर्फ हुसैन का झूला झुलाने, आयात लेके आना और बात है, मैसेज अल्लाह का लेके आना और बात है। भाई फान सिर्फ हुसैन का झूला झुलाने, सिर्फ हुसैन का झूला झुलाने, सिर्फ हुसैन का झूला झुलाने। जिस बंदे को जुमला समझ आया वो बोल पड़ा। मैं दोनों हाथ पेशानी पर रख के उस बंदे को सलाम करूंगा। अब सोच, अब्बास किसे कहते हैं? हुसैन सोते थे जिब्रील झूला झुलाता था, अब्बास सोता था हुसैन झूला झुलाता था। शाबाश, मातमी जिंदाबाद, अली वाले जिंदाबाद, गाजी के मोइन जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुसैन सोते थे जिब्रील झूला झुलाता था, अब्बास सोता था हुसैन झूला झुलाता था। अगर आप थके नहीं हैं तो इससे ऊपर चले। अजीब मंजर होता था मदीने की गलियों में, हुसैन अब्बास को अपने शानों पर बिठा लेते थे। भाई जुल्फ़िकार दुआ फरमाइएगा, अपनी जुल्फ़ी गाजी के हाथ देते थे, फिर जो मोहम्मद को चलाता था वो गाजी के कहने पे चलता था। हाय हाय हाय, मेरा साथ देना जवानों, जवानों की मुझे तारीफ चाहिए, लोगों से मैंने दुआएं समझ ली। जो मोहम्मद को चलाता था वो गाजी के कहने पे चलता था। भाईफान, एक दिन मदीने के रहने वाले किसी बंदे ने तलाश करती, मौला आप इमाम हैं, आप ये क्या करते हैं? आप अली और नबी के वारिस हैं, आप ये क्या करते हैं? ठीक है, भाइयों से होता रहता प्यार, मौला प्यार घर किया करें। आप अब्बास को अपनी शानों में बिठा के मदीने की गलियों में ले आते हैं। हुसैन आवाज देंगे, खामोश, आज के बाद एतराज न करना, हर जमाने की अली का ये हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे सवारी करे। शाबाश, सुभान अल्लाह, हाफाबाद जिंदाबाद। मैं राजी, बात मखदूमा आप राजी, पूरी ताकत के साथ बोलो हाय गरी। हर जमाने की अली का ये हक है कि वो अपने दौर के मोहम्मद पे सवारी करे। ये इसको उल्टे चले कीमत दो। ईद की रात थी भाई फान, मेरी खिताबत की जिंदगी में इससे खूबसूरत जुमला नहीं है। ईद की रात थी कि हुस्न की 2 आयतों ने इस्मत के कुरान से कहा, अम्मा हमें नए कपड़े चाहिए। हाय हाय हाय, फिर सुनो, ईद की रात, दुआ फरमाइएगा, ईद की रात थी कि हुस्न की 2 आयतों ने इस्मत के कुरान से कहा, अम्मा हमें, बोलो, नए कपड़े चाहिए। बाबा जी मौलवी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा बीबी ने बच्चों को बहलाने के लिए कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। खबरदार, जिसे मोहम्मद मैदान मुबाहला में अपनी सदाकत की गवाह बना के ले जाए, वो बहलाने के लिए झूठ नहीं बोलते। बात मैं कर गया हूँ हाफिज़ाबाद वालों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी सदाकत की गवाह बना के ले जाए, वो बहलाने के लिए झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ हाँ, इतनी सच्ची है बतूल कि सच नाम ही बतूल का है। इस बंदे का यकीन हो वो बंदा हाथ उठाए। इतनी सच्ची है सच नाम ही बतूल का है। बड़ी तवज्जो। हुआ क्या है, बच्चे माँ से कह रहे थे हमें नए कपड़े चाहिए, वो सुन रहा था, लुत्फ लेते आइए, वो सुन रहा था, वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सीधे, ये सुन रही थी। अभी हाथ कुछ नीचे है, अभी हाथ कुछ नीचे। वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सीधे, ये सुन रही थी। बड़ी तवज्जो।
हाफिजाबाद वालों, दो बातों में से एक बात माननी पड़ेगी। हम साथी जो मौलवी मान ले वो आपका बेटा अली जॉन मान ले, या फिर ये मानो कि बतूल के घर की दीवारें ही अर्श से मिलती हैं। भाई ये ज्यादती है, अभी हाथ कुछ नीचे है, अभी हाथ कुछ नीचे है। या फिर ये मानो घर की दीवारें ही अर्श से मिलती हैं, या फिर ये मानो कि ये हुसैन की अम्मा का इख्तियार है कि बात वहां होती है सुन यहाँ लेती है। हाय हाय हाय, इस बंदे को नहीं छुपाया, वो बंदा हाथ उठाया। और ये मानो कि बात वहां होती है सुन यहाँ लेती है। हुआ क्या, बच्चे माँ से कह रहे थे हमें नए कपड़े चाहिए, वो सुन रहा था। वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सी दे, ये सुन रही थी। इम्कान की मालिकन ने सर उठाया। अर्श पर रहने वाली मखलूक ने महसूस किया कि मालिकन देखना चाहती है। उन्होंने अर्श के पर्दे हटाए। पाक मखदूमा ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा। बेदारी चाहिए, बेदारी चाहिए, गाजी पढ़ रहा हूँ, गाजी पढ़ रहा हूँ। बीबी ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा। मंजिल कहीं और है। अगर आपके ज़हनों की जमीन तैयार हो गई तो फिर लुत्फ आएगा। बीबी ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा। भाई साहब देख के हसनैन को बुलाया, सीने पे सुलाया, बच्चों का मुंह चूम के फरमाते तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। भाई साहब जहां जहां मैंने ये मिसरे तिलावत किए, बहुत खूबसूरत दाद दुआ हुई है। अब मुझे पता नहीं है हाफिजाबाद के अंदर इन मिसरों को कैसे समाप्त किया जाता है। वो शायद देख रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो मालिक उसकी जिंदगी दराज फरमाए, अगर वो पर्दा कर गया है तो मालिक उससे दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बड़े खूबसूरत मिसरे हैं। वो क्या लिखता है, बीबी ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा, देख के हसनैन को बुलाया, सीने पे सुलाया, बच्चों का मुंह चूम के फरमाते तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अदल से कुछ तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने आपके। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी रहे हैं। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयाद सी रहे हैं। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयाद सी रहे हैं। बगैर खैयाद दर्जी को बोलते हैं, वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयाद सी रहे हैं। बीबी हसनैन का माथा चूम के फरमाते हसनैन घबराना नहीं, वहां की चीजें यहाँ पे आओ, मैं आज से रस्म डाल दूंगी। सुबह से पहले ना आए दर्जी तो नौकरी से। शाबाश, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए, आप दोनों सुना नौकरी से। भाई साहब यहाँ पे एक इल्मी लड़ाई हुई है। अगर मैं वो आज इल्मी लड़ाई ना पढ़ूंगा, इसका मतलब है कि आज मैंने शेरपुरे में पढ़ा ही नहीं। बड़ी तवज्जो, इल्मी लड़ाई किसमें, उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ। उलमाए कुम समझते कि इदरीस नबी कपड़े सी के ले आया। वो दुनिया में दर्जियों का काम करता था और अल्लाह ने ये काम उससे करवाया इसलिए था कि जन्नत में 2 सूट सिले। अल्लाह ने ये काम उससे करवाया इसलिए था कि जन्नत में 2 सूट सिले। बड़ी तवज्जो। उलमाए लखनऊ फरमाते ना, सीए इदरीस नबी में है, लाने वाले नौकर का नाम जिब्राइल है। इदरीस नबी सीए ये जिब्राइल, इदरीस नबी लाए ये जिब्राइल फरिश्ता हैं। तो दोनों मासूम ना, बोलो बोल के बताओ बाबा जी, हैं तो दोनों मासूम ना। इतने बड़े रईस हैं, आखिरी जुमला फजाइल का, इतने बड़े रईस हैं हसन हुसैन, जिनके कपड़े या नबी सीता है या फरिश्ता सीता है, या नबी सीता साथ हो मेरे भाई, या नबी सीता है या फरिश्ता सीता है। वो हाफिजाबाद के अंदर आए हुए हलालियों मातमियों, नबी या फरिश्ते का हसन हुसैन के कपड़े सी के आना और बात है, बतूल का गाजी के कपड़े सी के जाना। शाबाश, जिंदाबाद, अली वाले जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ उसी बंदे को उठता है जो गाजी का लंब करता हो, जबान वही बोलती है जो खजूर की मट्टी से बनी हो, दोनों बातों को फिजा में बुलंद करते हुए, कलेजे की पुंजा करते हुए, इस बच्चे से आखिरी बात तक जबान के साथ दिल बोला अली मौला, 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 अली मौला।
तमाम सदात मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रहे। 9 मुहर्रम है आज। जब से 9 मुहर्रम का सूरज शुरू हुआ, मामू साजिद यही बात सोच रहा हूँ कि दिन एक है, जनाजे 72 है। अल्लाह मेरी मारिफत सलामत रखे। मातम के लिए हाथ सीने पे आ गया। दिन एक है, जनाजे 72 है। तुम्हारी शक्ल अज़ादारों वाली दिखाई दे। लोग तुम्हें रोक रोक के पूछे, यार तेरा नुकसान क्या हुआ? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मिनस्सगिर। बिन्ते मुस्तफ़ा तुम पे राजी हो जाए। रोक रोक के पूछे, तेरा नुकसान क्या हुआ? कौम शिया का सबसे छोटा नौकर बावजूद मिंबर पे हाथ बांध के तेरी मिन्नत करो। 9 और 10 मुहर्रम जहाँ भी मातमी हल्का नजर आए, कुछ देर के लिए कुर्ता उतार के उस हल्के में खड़े होके मातम जरूर कर। और कोई बंदा तुमसे कहे ना कि कुर्ता उतार के मातम न कर, उसे कहना तू कुर्ता पहन के कर ले, मैं तो बेकफन का करता हूँ। कौन सा शिया जिसका हाथ सीने पे नहीं आया? तू कुर्ता पहन के कर ले, मैं तो बेकफन का करता हूँ। आज आप बड़ा गिलिया करेंगे, बड़ा रोएंगे, लेकिन 10 मुहर्रम जितना नहीं रो सकते। जब 10 मुहर्रम को तेरा और मेरा मातमी जवान जंजीर मार के अपने अपने घरों को जाते हैं, गुस्ल करके कपड़े तब्दील करके जब अपने अपने नरम बिस्तरों पे सो जाते हैं ना भाई फान, इस मिंबर की इज्जत की कसम, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त पे पहला ताज़ियाना लगता। बहुत अमीर है वो बंदा जिसका हाथ सीने से नहीं आया। उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त में पहला ताज़ियाना लगता है। उस वक्त तेरे और मेरे मातमी जवान की पुश्त भी जख्मी होती है। उस वक्त सैयद साजिदीन की पुश्त भी जख्मी होती है। और रख मेरे सर पे कुरान, मैं 2 पुश्तों का फर्क बताऊं। जब तेरे और मेरे मातमी जवान की पुश्त जख्मी होती है, उसकी छोटी छोटी बेटियां, उसकी बहनें आर के गुलाब में कपड़े भिगो के उसकी पुश्त से लहू साफ करती है और कहती है भैया बड़े खूबसूरत जंजीर लगे हैं, भैया तूने बड़ा मातम किया है। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जब सज्जाद की पुश्त से खून की पहली लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, रो रो के कहती थी भैया सज्जाद मेरे हाथ खुले होते, मैं तेरी पुश्त से लहू साफ। मातम करना अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मिनस्सगिर। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे।